Yes, All of you. ma'am. अच्छा ठीक है, चलो तो open your textbook, all of you. All of you open your textbook. Open your textbook. Take out this animal tissue lesson. Animal tissue. Okay, before starting with this lesson, tell me what is the basic structural and functional unit of life? Cell. Cell. Very good. Very good, Ayush Dubey. It is the cell. Cell is the basic structural and the functional unit of life. Group of cells will form the tissues. Yes? And tissues will form the organ. Organ will form the organ system. And organ system will form finally the organism. Understood? Okay. So cell, group of cells performing the same functions or maybe different functions. It is not necessary that it will be always the same functions. So the group of cells forming a same function or can be a different function is called as the tissues. Then tissues will form the organ. Organ will form the organ system. And finally it will form the organism. Okay. Now always remember students, animal tissue is different than the plant tissue. Plant tissue अलग होते हैं और animal tissues अलग होते हैं. ठीक है. Animal के अंदर हम सब animals के अंदर हम भी animals में आते हैं. हम सबके अंदर only 4 different types of tissues are working in coordination. That you are going to learn in this particular chapter. They are the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. ये 4 टिश्यूज आपको इस लेसन में डिटेल में पढ़ना है और समझना है. बहुत ही सिंपल है. सिर्फ थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन दोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ठीक है. So I will start with my PPT. All of you can see this definition which can be asked in the exam for a 1 mark question. Just a second. Okay, tissues. So it is a group of cells having same or embryonic origin, structure and the function. Various tissues, they will combine in an orderly manner to form a large functional unit which is called as the organ. Again, organ will form the organ system and organ system will form the body. We are having different types of organ system in our body, जैसे कि digestive system, nervous system, respiratory system, reproductive system, excretory system. ऐसे बहुत सारे systems हैं हमारे body में. सारे एक साथ काम कर रहे हैं coordination में और जिससे कि हम एक पूरा body बन गया है या organism बन गया है. Understood? Okay. So now, let us see the next part. As I told you just now, it is not necessary that cell, when the cell is grouping to form a tissue, it should always perform a single function. ऐसे जरूरी नहीं है हर बार, क्योंकि आप अलग अलग टाइप के टिश्यूज पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर फंक्शन करे. It can be more than a one function. ठीक है. So tissue is defined as a collection of cell collect together with any extracellular secretion. ठीक है. जैसे कि अभी मैं आपको क्या बताऊं एग्जांपल, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल बहुत सारे ग्रेन्स है, चावल है. ठीक है. आप एक चावल को एक सेल समझो, आपने सारे चावल को एक साथ कर दिया तो कैसा हो गया, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे. हो गया कि नहीं. अब हर चावल, 2 चावलों के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होगा, तो दैट वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिक्रीशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स. 2 सेल के बीच में जो भी जगह है, जो भी स्पेस है, उसमें कुछ भी हो सकता है. या तो वो खाली स्पेस भी हो सकता है, या तो स्पेस नहीं भी हो सकता है, या तो उसमें कुछ फ्लूइड भरा हो सकता है, या तो उसमें कोई जेली भरा हो सकता है. तो वो कुछ भी होगा. वो क्या है, वो हम जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ेंगे आप समझते जाओगे कि हर टाइप के टिश्यूज में क्या क्या अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती हैं. समझ में है मेरी बात? पर उस चीजों को, उस इंटरसेल्युलर स्पेस को हम मैट्रिक्स कहते हैं.
यस बेटा बोलो। इस मैट्रिक्स का डेफिनेशन एक और बार बताओ ना। वही बोल रही हूँ बेटा कि दो सेल के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। समझा बेटा श्री लक्ष्मी? यस मैम। जैसे आपने समझो 4-5 चावल के कण ले लिए। अब ये 4-5 चावल के कण को जब आप इकट्ठा करोगी, जब आप एक साथ लेकर आओगी, तो बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होगा ना, उसी को आप मैट्रिक्स कह रही हो। समझा? अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। Okay, good girl. Whatever doubt you are having, it's very good habit to clear then and there itself. I like this habit very much. ठीक है, जब भी मैं समझा रही हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, you have to interrupt me and you have to ask me then and there. Good girl, बेटा. Okay. Now this is the hierarchy of the tissues. Hierarchy मतलब क्या होता है बेटा? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, उसको हम हायरार्की कहते हैं। तो अगेन आप देख सकते हो इस डायग्राम में, फ्लो टेबल में, कि सारे केमिकल्स मिलकर सेल बन रहे हैं। ठीक है, केमिकल्स मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। यस, इनको हम केमिकल्स कह रहे हैं यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे मिलके सेल बन गया। सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेप वाइज, सो हायरार्की। ठीक है, अब हम इस लेसन में, इस लेसन का नाम ही है एनिमल टिश्यू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल के टिश्यूज के बारे में ही पढ़ना है। So as I've told you just now, we are having 4 different types of tissues. Our tissue is different from the plant tissues. आप plant tissues भी पढ़ोगे अलग लेसन में, तो वो tissues को यहाँ पे mix up नहीं करना। Animal के tissues अलग होते हैं, plant के tissues अलग होते हैं। एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू आपको डिटेल में पढ़ना है इन दिस पर्टिकुलर लेसन। बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू लर्न these 4 tissues which you can see on the PPT in detail. Epithelial tissue you have to learn in detail with its type, with its function, with its structure, with its diagram, everything. Similarly, you have to learn the connective tissue in detail with its structure, its type, its diagram, everything. मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स पढ़ने हैं उसका डायग्राम के साथ। नर्वस टिश्यू में कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, इट्स शेप। अंडरस्टूड? सो बेसिकली ये लेसन में आपको ये 4 टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स, उसके फंक्शन, वो कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, वो कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, यस, उसका क्या रोल है, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड in this particular lesson. Now those who want to prepare for the NEET exam, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है बेटा? How many of you want to become the doctor over here? How many of you are interested? Okay, Aditya has raised the hand. Okay, Poonam has raised, Shrishti, Ayush, okay, Chetna, okay, now yes, Sakshi, मतलब मैं future doctors को ही पढ़ा रही हूँ। Very good, many of the children are interested in NEET. Okay, so बेटा जो लोगों ने भी raise hand किया है for NEET exam के लिए, please do understand this topic is very 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 important. ये जो topic है वो बहुत important है because that is a basic part of your lesson. Understood? Yes. ठीक है? Yes, miss. So now we will be learning the different types of tissues with its function now. एक मिनट। Now before directly jumping to the tissues, let us first understand the 2 types of cells which are present in our body. So there are basically 2 types of cell in our whole body. Let us take an example of a human body itself. आप ये सोच के पढ़ो इस लेसन को कि हम अपने ही बॉडी में कहाँ पे कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है वही पढ़ने वाले हैं। So in our whole body we are having 2 different types of cell. सोमैटिक सेल्स। अगेन बायो का लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाएगा बेटा तो बायो बहुत 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 इजी हो जाएगा। सोमा का मतलब होता है बॉडी,
सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या हो गया? बॉडी सेल्स। तो हम सबके जो बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे हाथ में, पैर में, हमारे किडनी में, लिवर में, ब्रेन में, ये मतलब जहां पे भी जो भी सेल्स प्रेजेंट है नॉर्मल बॉडी सेल्स में, दे आर बीन टर्म्ड एज सोमैटिक सेल्स। फिर एक दूसरा कौन सा सेल है? जर्म सेल। जर्म सेल मतलब जो जर्मिनेट होने वाला है, जिससे कुछ चीज बनने वाला है। तो ये जो जर्म सेल्स है ना बेटा, दे आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, जिससे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। मेल में टेस्टिस में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवरी में एग बनता है। तो ये जो जर्म सेल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस और ओवरी तक ही सीमित है। Okay, they are present Miss- only and only in the testes and the ovary. Understood all of you? Okay. So testes में it helps in the formation of sperm and in ovary it helps in the formation of egg. और Miss- बाकी के जितने भी Miss- cells है, they are been termed as the somatic cells. Somebody's mic is on, beta. Please off Yes, your mic. miss, हाँ बोलो बच्चा. मिस स्टोमेटिक सेल को मतलब स्टोमेटिक सेल मतलब क्या होता है? Soma means body. ओ सोमा ने मिस स्टोमेटिक। हाँ तो soma means body, तो somatic मतलब body cells. ओके मिस। जब आपको सोमा का मतलब पता चल गया तो सोमैटिक मीन्स बॉडी सेल्स, ठीक है। सो द वर्ड सोमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोमा. यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट एंड यू कैन क्लियर योर डाउट. सी द सेकंड सेंटेंस. The word somatic is derived from the Greek word soma, which means body. All body cells of an organism except the sperm and the eggs are called as a somatic cells. So what are sperm and ovas are called as? They have been called as the germ cells and they are belonging to the reproductive system. Understood? Egg को Yes. ova भी कहा Yes. जाता है, Yes, miss. ठीक है। Yes, ma'am. स्पर्म Yes, को ma'am. स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। So now, next. Now in this lesson we are going to learn about the tissue. We have just seen the types of cell, but in this particular lesson you have to learn in detail about the tissue. You are going to learn about the cell also in the lesson organization of cell. You are having a lesson called as organization of cell. In that you are going to learn in detail about the cell organelles. मतलब सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वो सब भी आप पढ़ने वाले हो, बट वो सेल ऑर्गेनाइजेशन लेसन में पढ़ने वाले हो। अब हम इस लेसन में क्या पढ़ रहे हैं कि सारे सेल्स इकट्ठा हो गए हैं और टिश्यू बन गया है, ठीक है। So what is the study of tissue called as? It is called as a histology. Study of tissue is called as the histology. Study of structure and arrangement of the tissue is called as a histology. Next, who has discovered this? Marie Francois Xavier. He has been called as a father of histology. So he was the first one to discover it. As we have been mentioning many times, so you have to learn in animals there are 4 different types of tissues, as the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the nervous tissue. I hope this part has been done. All of you have noted down. Please, Yes, all of you make a habit of noting down the points whenever the teacher is teaching you all. It will be easy for you when you refer the textbook. Done? Yes, Mm. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these are the overview of a diagram. Note you have to learn in detail about it. You have to learn the different types also. But this is an overview कि एक epithelial tissue कैसा दिखता है, connective tissue कैसा दिखता है, muscular और nervous. So let us first begin with the epithelial tissue. So please note down all of you epithelial tissue.
So let us learn the general points about the epithelial tissue. कि epithelial इसको नाम क्यों दिया गया? तो पहली बात, एपी का मतलब बायो में होता है अबव, ऊपर, एंड थीलियम का मतलब होता है लेवल. सो जो टिश्यू ऊपर है, एक लेयर ऑफ सेल से बना है, उसको हमने नाम दिया एपिथेलियल टिश्यू. तो ऐसा टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है? जो भी हमारा स्किन है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर और उसके अंदर का लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू का होता है. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गन है, लेट अस इमेजिन दिस एज ऑर्गन, तो इसके ऊपर का कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू है, और अगर इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर का लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू है. समझ में आया मैंने क्या बताया? Yes, ma'am. लाइनिंग का Yes, मतलब, ma'am. लाइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? देखो आप, जैसे अभी स्पेशली गर्ल्स, लड़कियां कपड़े सिलाती हैं तो अंदर अस्तर लगता है, अस्तर, उसको लाइनिंग कहा जाता है ना? अस्तर को लाइनिंग कहा जाता है कि नहीं? उसी Yes, तरह ma'am. से हर एक ऑर्गन के जो अंदर वाला लेयर होता है, अंदर वाला लेयर होता है, उसे भी लाइनिंग कहा जाता है. वो कोई ना कोई टिश्यू से बना होता है. फिर वो एपिथेलियल टिश्यू से भी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू से भी हो सकता है, पर जनरली नॉर्मली एपिथेलियल टिश्यू का ही लाइनिंग होता है कोई भी ऑर्गन्स के ऊपर. फिर वो किडनी हो, स्टमक हो, कोई भी इंटेस्टाइन हो, एवरीथिंग. तो लाइनिंग का मतलब आपको दिमाग में समझ में आ गया, लाइनिंग किसको कहते हैं ना? Yes, द सेल्स ma'am. ऑफ दिस टिश्यू. अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू को अगर आप देखोगे तो पहचानोगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी देखो इस डायग्राम में मैंने सारे टिश्यूज आपको एक साथ डिस्प्ले कर दिया. मैंने एपिथेलियल भी डिस्प्ले कर दिया, कनेक्टिव भी डिस्प्ले कर दिया, मस्कुलर भी, नर्वस भी. Now, how can you identify epithelial tissue? ठीक है, how can you identify a epithelial tissue? So the unique characteristics of epithelial tissue is the cells are so compactly arranged. इतने पास पास में cells हैं कि there is very little intercellular matrix present. अब ये क्या है matrix? अभी मैंने बताया था ना बेटा, inter मतलब बायो में होता है in between. इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज, इन बिटवीन. समझ में आया? तो प्लीज ट्राई टू कोरिलेट द थिंग्स विच एवर यू आर टॉकिंग इन डे टू डे लाइफ, so that the things you can understand the things over here nicely and easily. Understood? Okay, so cells के बीच में, the cells are so compactly arranged, इतने पास पास में cells present है कि there is a very little intercellular matrix. Matrix अभी मैंने आपको बताया क्या है? There is very little intercellular matrix present. Understood this much point? Second point समझ में आ Yes, गया ma'am. सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. एपिथेलियल टिश्यू का खास बात क्या है कि ये जो टिश्यूज है ना, उसको एक बेस की जरूरत पड़ती है. उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. जैसे आप सब लोग आजकल मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल के नीचे आप कवर लगाते हो ना सब लोग. कोई कोई मोबाइल में कवर लगा भी रहता है, कोई कोई में नहीं भी. तो समझो आप इसी को इमेजिन करो कि ये जो कवर लगा है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो एपिथेलियल टिश्यू में हमेशा एक नीचे बेस में लेयर रहेगा, जिसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मतलब लेयर, बेसमेंट मतलब जो बेस में है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. दे आर पॉलीगोनल. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉली? पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मेनी. पॉली का मतलब होता है मेनी. तो ये जो सेल्स होते हैं ना, इनका कोई एक शेप नहीं होता. शायद वो राउंड भी हो सकते हैं, शायद वो हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, शायद वो क्यूब शेप के भी हो सकते हैं. तो कोई एक शेप नहीं है इनका, कोई भी टाइप का शेप हो सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज पॉलीगोनल. इट कैन बी क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के जैसा. इट कैन बी कॉल्यूमनर. कॉल्यूमनर मतलब टॉल टॉल भी हो सकते हैं. तो सो दैट कैन बी ऑफ एनी शेप. So we saying that it is polygonal. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई भी एपिथेलियल टिश्यू में
अभी हम इसके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी एपिथेलियल टिश्यू. वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंट टाइप्स आल्सो फर्दर पार्ट. Any of the epithelial tissue, they will have a single nucleus, one nucleus, which is present at the center or it may be at the base, depending upon the type. न्यूक्लियस तो एक ही होगा, ये तो श्योर है, पर वो न्यूक्लियस कोई कोई में सेंटर में होगा, कोई कोई में बेस में होगा, समझा? पर एक ही न्यूक्लियस होगा, ये कंफर्म है. एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होगा सेल में एपिथेलियल टिश्यू का. ठीक है. नेक्स्ट, द टिश्यू इज अवैस्कुलर. वैस्कुलर का मतलब बायो में होता है ब्लड वेसल्स, रिच इन ब्लड सप्लाई. सो मैं क्या कह रही हूँ, एपिथेलियल टिश्यू इज अवैस्कुलर. अ मींस नॉट वैस्कुलर, नॉट हैविंग इट्स ओन ब्लड वेसल. फिर आप मुझे पूछोगे फिर मैम इसको नरिशमेंट कैसे मिलता है जब इसके पास ब्लड वेसल ही नहीं है? तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज इट इज गेटिंग इट्स nourishment from the underlying connective tissue. epithelial tissue के नीचे connective tissue है और connective tissue से इसको सारा nourishment मिल जाता है. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. It has a very good capacity of regeneration. This is a very important point beta, and it is a very important role in our life also. देखो आप सबको, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो स्किन है इट्स एन एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो आपको बचपन से लेके अभी तक कई बार तो चोट लगी होगी, कभी आप जल गए होगे, कभी आप कट गए होगे, कभी कभी रनिंग करते वक्त गिर गए होगे, बहुत जोरों का स्क्रैच आ गया होगा, पर फिर वो वैसा का वैसा ही है क्या कि वो हील हो गया? हील हो जाता हील है. हो गया मैम. तो क्यों हील हुआ पता है आपको? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कैन रीजेनरेट, वापस से जनरेट हो सकता है. काश ये रीजनरेशन अपने बोन्स में भी होता, है ना? अगर यही रीजनरेशन हमारे बोन्स में भी होता तो अगर हमारा हाथ टूट भी जाता, पैर टूट भी जाता तो भी रीजनरेट हो पाता, पर ऐसा नहीं है. बोन्स कैन नॉट रीजनरेट बट एपिथेलियल टिश्यू कैन रीजनरेट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I hope all the points are very much clear to you all. I will once again revise all the points. So epithelial tissue, they are either present on the outer layer or the inner layer of our body or the organs. How can we identify this tissue? The cells are very compactly arranged with very less space in between, or I can say a very little intercellular matrix. The cells are 101% always resting on a basement membrane. It can be of any shape, so I can say they are polygonal, they can be cuboidal, they can be tall like columnar, etc. Nucleus is always one, single nucleus, but the position may change. It can be either at center or it may be at the base. The speciality of this tissue is it is avascular. It does not have its own vessel, but it gets its nourishment from the underlying connective tissue. This tissue has a very good capacity of regeneration. Understood? All of you, any doubt till here? Yes, miss. Yes, ma'am. Miss. Yes, beta bolo चेत. Yes, bolo. मिस ये Aditya. टिश्यू किस में आता है? सोमैटिक सेल्स के इसमें? ऑब्वियसली बेटा, ये सारे जो टिश्यूज अभी आप पढ़ रहे हो सब सोमैटिक ही हैं, सिर्फ स्पर्म और एग जर्म है. बाकी ये जितने भी चारों टिश्यूज आप पढ़ने वाले हो ना सब सोमैटिक है. यस मिस. Miss, हाँ बोलो बेटा. Miss अवास्कुलर बताना वापस. विदाउट ब्लड वेसल. अ मीन्स विदाउट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल. ठीक है? Okay. मिस से बेटा. मिस Yes, who is that? मिस टेस्टिस जिसमें बनता है वो भी मतलब स्टोमेटिक सेल से बना रहता है ना? Testes is a gonad. Testes is a gonad and ovary is a gonad. वो reproductive organ है बेटा अपना. समझ में पर आया? वो जिसके अंदर बनेगा मतलब वो तो स्टोमेटिक सेल से बना होगा ना?
वो किसके अंदर बना क्यों रहेगा, वो तो खुद ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, अंडरस्टूड। उसके ऊपर Okay, miss. कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू का और कनेक्टिव टिश्यू का है, उसके ऊपर हाँ कवरिंग miss. है, पर वो खुद रिप्रोडक्टिव सेल है, जर्म सेल है। अब समझा? Yes ma'am. जैसे आप मुझे कह रहे हो टेस्टिस जो है उसके ऊपर कवरिंग, नो डाउट जर्माइनल एपिथेलियम का होगा, अभी हम आगे का एपिथेलियम पढ़ेंगे ना, तो टेस्टिस के ऊपर, ओवरी के ऊपर एपिथेलियम का कवरिंग होता है, पर वो बना किससे है, जर्म सेल से बना है, ठीक है? Yes ma'am. Okay. Now, what is the function? It helps in protection, it helps in absorption, it helps in transport of the material, filtration and secretion. This epithelial tissue helps in all these functions of our body. Now, depending upon the layers, there are two types of epithelial tissue. Simple epithelial tissue means only one layer will be there. अगर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियम 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स। बट जो सबसे नीचे वाला सेल रहेगा, भले कितना भी बड़ा लेयर होने दो, पर जो नीचे वाला लेयर होगा ना, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगा। ऐसा नहीं है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, ऐसा नहीं है। लेयर 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 और नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया? Yes ma'am. मैम। ओके ना, सिंपल के आपको टाइप्स पढ़ने हैं, तो आप एक काम करो बेटा, पहले आप लिखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, राइट डाउन इन योर नोटबुक टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लिखा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक साइड लिखो सिंपल, दूसरे साइड लिखो कंपाउंड। एट वन साइड राइट डाउन सिंपल, दूसरे साइड लिखो कंपाउंड। मिस मिस हेलो बोलो, हाँ बोलो मिस बोलो। मिस, आप जरा फिर से बोल सकते हो कि मेरा वो हो गया था अभी, अच्छा, हैंग हो गया नेटवर्क का था। प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम। एपिथेल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लिखने के लिए कहा मैंने बेटा, राइट डाउन द हेडिंग इन योर नोटबुक एज टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और उसको आप दो पार्टीशन करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, मेक अ ब्रांचिंग। एट वन साइड राइट डाउन सिंपल एपिथेलियम एंड दूसरे साइड लिखो कंपाउंड एपिथेलियम, मेक अ फ्लो टेबल। लिखा, सिंपल के नीचे लिखो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, कंपाउंड के नीचे लिखो मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल। सिंपल के नीचे सिंगल लेयर ऑफ सेल, कंपाउंड के नीचे मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल। यू कैन सी द स्क्रीन आल्सो। यस For compound, just add one more point that the lowermost layer lies on the basement membrane. Add one more point for the compound epithelium. Add one more point for the compound epithelium that the lowermost layer lies on the basement membrane. So all of you are enjoying learning at home? Yes, नो मिस No miss. No. Anybody else? वाले हैं कोई? No, miss. No, miss. नो मिस You want to meet your friends, make new friends, है ना? यस मिस Yes, miss. Okay. चलो ठीक है. Now, please note down, again put a heading as simple epithelium. Again,
Leave that line. Write down again next heading, simple epithelium. You have to learn 7 types of simple epithelium. Okay. So just note down one by one and then we will be learning each one. सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स आपको लिखना है. आप सिर्फ नाम एक एक करके लिखते जाओ और फिर हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सिंपल एपिथेलियम में पहला नाम लिखो. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. नेक्स्ट नाम लिखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू. आप एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हो या फिर आप एपिथेलियम भी बोल सकते हो, एक ही चीज है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नंबर 2 एज क्यूबॉइडल. ये सब सिंपल के टाइप्स है. हाँ. फिर नंबर 3 पे लिखो कॉल्यूमनार एपिथेलियम. columnar epithelium. Next, ciliated epithelium. Ciliated epithelium. ठीक है. Glandular epithelium. Glandular epithelium. Sensory epithelium. Sensory epithelium. लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Germinal epithelium. Germinal epithelium. Next, now again put heading as compound epithelium. Compound में आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं. कंपाउंड में सिर्फ 2 टाइप्स ही पढ़ने हैं. कंपाउंड में फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. And next one is the transitional epithelium. Transitional epithelium. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let us learn the first one, that is a simple epithelium का first one, that is a squamous epithelium. सिंपल एपिथेलियम है मतलब एक ही लेयर का सेल है, एक ही लेयर का है जिससे कि टिश्यू बना है. अब देखो इसमें से आपको कोई भी एपिथेलियम एग्जाम में पूछा जाए, प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छे से कान खोल के सुनो. इसमें से कोई भी एपिथेलियम अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, फिर वो स्क्वैमोस हो, क्यूबॉइडल हो, कॉल्यूमनार हो, कुछ भी हो, आपको ये आंसर 4 हेडिंग्स में लिखना है. क्या करना है? 4 हेडिंग्स में आपको आंसर लिखना है. कौन कौन से हेडिंग्स आप लिखोगे? एस फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एग्जांपल आपको स्क्वैमोस एपिथेलियम पूछा है तो आप उसका पहले लिखोगे स्ट्रक्चर. 3-4 लाइन में आप उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करोगे. स्ट्रक्चर मतलब ये स्क्वैमोस एपिथेलियम दिखता कैसा है, उसके सेल्स कैसे हैं,
उसका न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस बीच में है कि लास्ट बेस में है, ऑल दिस थिंग्स स्ट्रक्चर में आ गए। नंबर 2 हेडिंग लोकेशन, कि ऐसा टाइप का एपिथेलियम हमारे बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है। तो एटलीस्ट 2 लोकेशन तो आपको याद करना ही है, भले आप सारे लोकेशंस नहीं याद कर सको, पर एटलीस्ट 2 लोकेशंस तो याद करो कि कौन से 2 जगह में ऐसे टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट है। नंबर 3, अगर आपको लोकेशन पता चल गया तो आपको फंक्शन तो पता चली जाएगा, तो उसका फंक्शन विल बी अ थर्ड हेडिंग एंड फोर्थ हेडिंग विल बी द डायग्राम। Understood? Whenever this questions is been asked in the exam, we expect you all to write down the answer in this 4 headings: structure, location, function, and the diagram. I hope you have understood. So all these things you will be doing after the lecture. After the lecture, जितना भी मेरा आज पढ़ा के होगा वो सब आप ये 4 headings में complete करोगे, referring your textbook. You can also take a screenshot of the page, whatever I am teaching you all. अभी आप समझ के लोगे, बाद में आप लिखोगे, कैसे लिखना है ये मैंने आपको भी बता दिया। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, तो चलो स्क्वैमोस एपिथेलियम कैसा दिखता है, तो पहले आप डायग्राम देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बायो को और आसान करना है तो डायग्राम को सामने रख के पढ़ा करो, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो इस डायग्राम को देखो, ये वाले नीचे वाले डायग्राम को ही देखो पहले, ठीक है। हमें कैसा दिख रहा है, सेल्स बहुत ही पास में प्रेजेंट है, इतने पास में प्रेजेंट है कि बीच में थोड़ा भी स्पेस नजर नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा भी स्पेस नहीं नजर आ रहा है। तो सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली प्रेजेंट विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, राइट है कि नहीं? सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो इट इज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी वाला पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट लिख दिया आपने। नंबर 3, सेल का कोई शेप दिख रहा है क्या? देखो इसमें कैसा अलग शेप का है, इसमें देखो अलग शेप का, इसमें देखो अलग शेप का, इसमें अलग शेप का है, इसका मतलब दे आर पॉलीगोनल। पॉलीगोनल है मतलब कोई भी शेप का है। नंबर 4, न्यूक्लियस बताओ, न्यूक्लियस की तरह सेंटर में है कि आजू बाजू में? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। अंडरस्टूड? ये तो ऐसा ड्रॉ किया हुआ डायग्राम पे, पर जब सच में हम देखेंगे तो ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर्स दिखेगा, मार्जिन हमें ऐसा प्लेन मार्जिन नहीं दिखेगा, हमें जिगजैग मार्जिन दिखेगा। तो ऐसे जिगजैग मार्जिन को क्या कहा जाता है बायो में? सेरेटेड मार्जिन। क्या कहा जाता है? सेरेटेड मार्जिन। और ये अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कैसा नजर आ रहा है बेटा? टाइल्स के जैसा, जैसे अपने फ्लोर पे टाइल्स होता है ना, जैसे रस्ते पे सड़कों पे जो पेडेस्ट्रियन होता है, जहाँ पे लोग चलते हैं, वहां पे ऐसे टाइल्स लगे होते हैं ना, कोई भी शेप का टाइल्स है, जैसे कभी कभी किसी के टेरेस पे भी लगे होते हैं कि कोई भी टाइप का जो टाइल्स बच जाता है एक साथ चिपका के, ऐसा दिख रहा है टाइल्स के जैसा। तो क्योंकि ये भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है, इसीलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। तो देखो अब सारे पॉइंट्स पढ़ो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर फ्लैट। फ्लैट तो है, थिन तो है, पॉलीगोनल है, अलग अलग शेप है, सेरेटेड मार्जिन है, जिगजैग लाइंस है, प्लेन मार्जिन नहीं है। दे फिट टुगेदर लाइक अ टाइल्स ऑफ फुटपाथ। इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। फेवरेट कॉलेज इन ऑल द कॉलेजेस, मोस्टली मोस्टली कॉलेजेस में ये फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सा एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है? फेवरेट क्वेश्चन। तो कौन से एपिथेलियम को पेवमेंट कहा जाता है? स्क्वैमोस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टाइल्स ऑफ फुटपाथ के जैसा दिखता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब गोल है, या ओवल है, ओवल मतलब अंडे के शेप का है, पर कहां पर प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द सेल। अंडरस्टूड? लोकेशन कहां पर है? ऐसे टाइप का टिश्यूज हमारे ब्लड वेसल्स में है। ब्लड वेसल्स क्या है बेटा? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमारे एल्वियोलाई में, हमारे लंग्स में बलून के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं।
हमारे बॉडी कैविटी में है, बॉडी कैविटी को हम सीलोम भी कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन भी वैसा ही है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन। तो एटलीस्ट 2 तो भी फंक्शन आपको याद रखना और 2 लोकेशन तो भी याद रखना है। और फिर डायग्राम हो गया, आंसर खत्म। समझ में आया? Yes, miss. यस मैम। Yes, miss. पर सारा पॉइंट्स देख लो, एक बार सारा पॉइंट्स देख लो। आई विल गिव यू 1 minute. See all the points. Any doubt you can ask me. कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, you can ask me. मिस Miss, थर्ड वाला इसमें- पॉइंट नहीं था, थर्ड वाला पॉइंट हाँ, क्या नहीं समझा है बेटा उसमें आपको? मिस वही प्रोमिनेंट स्पेसिकल और ओवेलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोल। ओवल का मतलब अंडे के जैसा। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है। क्या इसमें डाउट है? मिस प्रोमिनेंट का मतलब प्रोमिनेंट मतलब दिखने वाला, दिखने जैसा। ओके। मिस इसमें एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना? क्या एग्जाम्पल दोगे? मतलब जैसे आपने दिया है ना, फिटेड टुगेदर लाइक द टाइल्स ऑफ अ फुटपाथ। हाँ बेटा वापस बोलो। आपने लिखा है ना, फिटेड टुगेदर लाइक द टाइल्स ऑफ अ फुटपाथ, वो जैसा एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं क्या? ये लिखना ही है, एग्जाम्पल नहीं है, ये लिखना ही है। चलेगा। ये सारा पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये आपको लिखना ही है स्ट्रक्चर में। All the 3 points which has been displayed on the screen that you have to write down under the heading structure. Function में 2 function, location में 2 location. Understood? Miss, Yes, ma'am. Okay. And then you have to draw the diagram. चलो now next epithelium की तरफ चलते हैं। Cuboidal epithelium. You can see these cells. See, I am moving the cursor. You can see these cells. They are cube के जैसा, cube के जैसा दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया cuboidal epithelium. तो स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको ये 2 ही पॉइंट लिखना है, सिर्फ only 2 points में आपका स्ट्रक्चर फिनिश। क्या लिखना है? The cells are cuboidal in shape with a spherical nucleus at the center. गोल न्यूक्लियस एट द सेंटर। हो गया इसका स्ट्रक्चर फिनिश। लोकेशन कहाँ पर है? हमारे पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक डक्ट में, हमारे सलाइवरी डक्ट में है, हमारे नेफ्रॉन्स में। आपको नेफ्रॉन पता है क्या है? नो मिस। हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी और डीसीटी होता है। आप 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ोगे एक्सक्रीशन लेसन में, ठीक है। आपने आपके 9th 10th में भी पढ़ा है नो डाउट, बट फिर भी आपको और डिटेल में 11th में पढ़ना है, ठीक है। सो पीसीटी डीसीटी आपने ऑलरेडी सुना है नाम 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, कि नेफ्रॉन का ये पार्ट है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का ये पार्ट है पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी एंड डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। फिनिश। जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट आल्सो। मैंने आपको इसलिए एकदम सिंपल फॉर्म में आपको पीपीटी में दिखाया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? क्यूबॉइडल ये आप लिखोगे हाँ अपने नोटबुक में बाद में। मिस सिक्रेशन मतलब बता ना एक बार। हाँ, सिक्रेशन मतलब कौन है बच्चा ये? अभिषेक, यू डोंट नो सिक्रीशन का मतलब? योर ना वर्नाक्युलर मीडियम बेटा अभिषेक। नो मिस। योर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट बेटा? मिस इंग्लिश मीडियम। सो यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सिक्रीशन? सिक्रीट मतलब कोई चीज सिक्रीट करना, कोई चीज बनाना। जैसे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रीट होता है,
हमारे स्वेट ग्लैंड में स्वेट सिक्रीट होता है। अब समझ में आया? नहीं मिस, वो मुझे मालूम था, पर मुझे लगा कि इसका कुछ दूसरा मीनिंग भी होगा। तो दूसरा मीनिंग क्या होगा? अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम अगर सलाइवरी डक्ट में प्रेजेंट है तो वो सलाइवा सिक्रीट करता है। अगर वो पैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट है तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। यस मिस। ओके, नेक्स्ट इज द कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ठीक है, कॉल्यूमनार सेल्स में कॉलम का मतलब होता है टॉल, पिलर के जैसा। ठीक है, तो यू कैन सी द सेल्स ओवर हियर इन द डायग्राम। द सेल्स आर वेरी टॉल, पिलर के जैसा, लंबे लंबे सेल्स हैं, है ना। अभी तक के सेल्स देखो कैसे थे, क्यूब के जैसे थे, पर यहाँ के सेल्स देखो, आप देख सकते हो लंबे लंबे हैं, टॉल हैं, पिलर के जैसे हैं, इसलिए हम इसका नाम दिए हैं कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर हमें दो सरफेस नजर आ रहा है। यस, द इनर एंड ऑफ द सेल्स आर नैरो, ये साइड जो है ये नैरो है, जो नीचे वाला हिस्सा है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है वो वाला हिस्सा नैरो है, जबकि जो फ्री एंड है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, फ्री एंड जो है दे आर ब्रॉड एंड दे आर फ्लैट। ठीक है, कोई ऐसे वेस के जैसा शेप है। तो जो नीचे वाला हिस्सा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है वो नैरो है, और ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, ब्रॉड है एंड फ्लैट है। ठीक है, अच्छा अब हम ये ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं। ये जो फ्री एंड है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो फ्री सरफेस है, वहां पे बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं। बायो में विलाई का मतलब होता है फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन, जैसे फिंगर है हमारे ऐसे, हाँ, फिंगर के जैसा अगर कोई जगह प्रोजेक्शन है तो उसे हम विलाइज कहते हैं। अब क्योंकि ये सेल के अंदर है, सेल तो खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, सेल के अंदर भी फिंगर के जैसा है, इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है, ओवल है, पर सेंटर में नहीं है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल, लोअर हाफ ऑफ द सेल। आप लोअर हाफ भी बोल सकते हो, आप बेस भी बोल सकते हो। ऐसा टाइप का एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर लिवर के पास होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक में, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड मतलब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्यों इन सारे जगह में प्रेजेंट है, और माइक्रोविलाई का इंपॉर्टेंस क्या है? तो माइक्रोविलाई जहां पे भी होता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये फिंगर के जैसा होने की वजह से यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ गया है। अंडरस्टूड में क्या बोल रही हूँ? ठीक है, सो माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन और द सिक्रीशन व्हाटएवर फंक्शन इट इज डूइंग। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉल्यूमनार एपिथेलियम कैसा दिखेगा, सेल्स टॉल है, पिलर के जैसे हैं, इसके लिए हमने इसका नाम कॉल्यूमनार दिया। इसके दो एंड है, जो नीचे वाला एंड है वो नैरो है, जो ऊपर वाला एंड है, जो फ्री एंड है, वो ब्रॉड है और फ्लैट है। जो ऊपर वाला फ्री सरफेस है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस है, जिसको हमने नाम दिया माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। न्यूक्लियस ओवल है, न्यूक्लियस स्फेरिकल नहीं है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, ओवल है, और सेंटर में भी नहीं है, इट इज प्रेजेंट नियर टू द बेस। यस, नाउ व्हाट is the location, it is present intestine bladder diagram. Understood? Yes, ma'am. So go through all the points once again. Any doubt you can just ask me. Done? Understood?
Yes, Yes, ma'am. चलो आज के लिए फिर लास्ट वाला पढ़ते। देखो ये वाला कॉल्यूमनर एपिथेलियम है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ऐसा। ओके, नाउ आज के लिए हम लास्ट वाला पढ़ेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। अगेन ये सेल्स ऐसे ही दिखते हैं, सेम ऐसे ही है, इसका स्ट्रक्चर सब सेम है, सिर्फ फर्क किधर है, फ्री एंड पे माइक्रोविलाई के जगह, जैसे आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा ना, ये येलो वाला पॉइंट देखो, येलो वाला पॉइंट, बाकी का सारा पॉइंट सेम है, फर्स्ट पॉइंट भी सेम है, सेकंड पॉइंट भी सेम है, थर्ड पॉइंट में सिर्फ फर्क है और फोर्थ पॉइंट भी सेम है। तो कॉल्यूमनर और आपने कॉल्यूमनर पढ़ लिया, वैसे सीलिएटेड भी आपका पढ़ के हो जाएगा, सिर्फ फर्क किधर आप लिखोगे, ये येलो वाले पॉइंट में, थर्ड वाले पॉइंट में। In ciliated epithelium, you will be writing that the free surface has cilia. फ्री एंड पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, इसके लिए इसका नाम सीलिएटेड एपिथेलियम पड़ा है। सीलिया कैसा डायग्राम में दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सो अगर फ्री एंड पे हेयर के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम सीलिया बोलते हैं, तो उसको हमने नाम दिया सीलिएटेड एपिथेलियम। ऐसा टाइप का एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट है, तो हमारे ट्रेकिया में प्रेजेंट है। ट्रेकिया पता है किसको बोलते हैं, विंड पाइप को, श्वास नली को, विंड पाइप, यस ट्रेकिया में। क्यों, क्योंकि जब आप एयर इनहेल कर रहे हो तो शायद डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ना, ये जो हेयर के जैसा स्ट्रक्चर है, वो डस्ट पार्टिकल को या फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, अंदर हमारे लंग्स में नहीं जाने देते हैं। समझ में आया? So the ciliated epithelium present in the trachea, they will trap the dust particle and they will prevent the entering of the foreign particles in our lungs. Understood? Yes, miss. Yes, miss. Next, और एक जगह पे भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने ओविडक्ट सुना है, ओविडक्ट Yes, सुना है ना नाम, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। miss. फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है ये। Yes, miss. ना ओविडक्ट के अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियम ही पाया जाता है। क्यों, व्हाई? बिकॉज द एग इज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, एग खुद से आगे नहीं बढ़ सकता, खुद से लोकोमोशन नहीं कर सकता। जैसे आपने ह्यूमन स्पर्म के बारे में सुना है, इस स्पर्म के पास टेल होता है, वो टेल की मदद से उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। जबकि एग ऐसा नहीं होता है, एग के पास न सीलिया है, न फ्लैजिला है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है। पर एग को इस फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करना होता है, तो वो किसके मदद से कर पाती है, सीलिएटेड एपिथेलियम के मदद से कर पाती है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो ये जो मूव करेगा ना, तो एग को पुश करता है, आगे आगे पुश करता है। सो सीलिएटेड एपिथेलियम का इंपॉर्टेंस ओविडक्ट में क्यों है, बिकॉज इट पुश द एग थ्रू द ओविडक्ट। समझ में आ गया? Yes, miss. Yes or no? Yes, miss. So just go through all the points once again. So cells of this tissue are cuboidal or columnar. Shape doesn't matter. उसके ऊपर सीलिया है तो वो सीलिएटेड हो गया। वो क्यूब शेप का भी हो सकता है, वो लंबे लंबे टॉल शेप का भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है। इसका फ्री एंड ब्रॉड है, नैरो एंड मेम्ब्रेन पे है। फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है सीलिएटेड एपिथेलियम। न्यूक्लियस यहाँ पे भी ओवल है और नियर टू द बेस है। फंक्शन क्या है, टू क्रिएट मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, thus able to prevent the entry of foreign particles in the trachea. Foreign particles can be the dust particle also. It also pushes the ovum through the oviduct. Where this type of epithelium is present in the inner lining of the buccal cavity of frog also. Nasal cavity मतलब nose cavity, trachea में present है, oviduct of vertebrates में भी present है। समझ में आ गया? Yes, miss. Yes, miss. And then you have to draw this diagram.
So today we have learned, see this is the actual diagram, how we can see the cilias. कैसे cilia दिख रहे, देखो कितने सुंदर दिख रहे cilias. So therefore it is a ciliated epithelium. आप देख सकते हो न्यूक्लियस बेस की तरफ प्रेजेंट है, ओवल है. समझा बेटा? So we have learned today till the ciliated epithelium. So homework for all of you is to write down in 4 different headings about the squamous, cuboidal, columnar and ciliated. समझा? ये 4 epithelium लिख के रखोगे 4 headings में. Yes, Yes, yes. Yes, miss. Okay, and you all will be showing me by you can on your camera and you can show me in the next class. The next class mein I will see everybody's notebook. I want everyone